السلام علیکم بچوں آج ہم خواجہ غلام السیدین کا لکھا ہوا ایک مضمون جینے کا سلیقہ پڑھیں گے۔ یہ ان کا لکھا ہوا بہت بہترین مضمون ہے۔ اس میں مصنف نے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ ان کے نزدیک زندگی گزارنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ پہلی بات انہوں نے بتائی ہے اچھے لوگوں کی صحبت، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ دوسری چیز بتائی ہے اچھی زندگی کے لیے جو ضروری ہے اچھی کتابوں کا مطالعہ، اور اس کے بعد تیسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ اپنے وقت کو صحیح کاموں میں گزارنا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کے حالات پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے ان کے اچھے کام ہیں جنہوں نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ کتابوں میں ان کے بارے میں جو ہے لکھا ہوتا ہے، کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ان کو پڑھیں اور ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں، ایسے لوگوں کی زندگی۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں ہم لوگ پڑھیں اس کو، جینے کا سلیقہ۔ مصنف کہہ رہے ہیں میں ایسے مشاہیر کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ مشاہیر کہتے ہیں کس کو؟ مشہور لوگ۔ میں ایسے مشہور لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں جن کی گفتگو میں وہ لوچ، دل آویزی اور سلیقہ ہوتا تھا کہ جہاں سے اٹھنے کو دل نہ چاہے۔ مثلاً سرتیج بہادر سپرو، سروجنی نائیڈو، مولانا آزاد، سید راس مسعود، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین۔ یعنی ایسی کیفیت ہوتی تھی جب وہ لوگ بولتے تھے تو ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے وہ بولتے رہیں اور ہم صرف ان کی باتوں کو سنتے رہیں۔ اس کشش کی وجہ یعنی کھچاؤ، اس کھچاؤ کی وجہ کیا تھی؟ اس کھچاؤ کی وجہ صرف یہ نہ تھی کہ وہ اردو زبان پر قدرت رکھتے تھے، یعنی انہیں اردو زبان پر جو ہے اردو زبان کی بہت زیادہ بہترین صلاحیت تھی، وہ بہت اچھا بولتے تھے، یہ بات نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ ان کا دماغ جو تھا، ان کا دماغ روشن اور مرتب تھا۔ یعنی وہ اپنی زندگی میں جو کچھ تجربوں کے ذریعے جو کچھ سیکھے تھے، اپنے تجربوں کے ذریعے جو کچھ سیکھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں میں، اپنے سننے والے لوگوں میں اس کو بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ انہیں اپنی زندگی اور تجربوں میں وہ شریک کرنا چاہتے تھے۔ اور جمہوریت کے اس زمانے میں جب زبان سے ترغیب اور تبادلہ خیال کا زیادہ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، یعنی یہ جمہوریت کا اس دور، یعنی جمہوریت کا ہمارا ملک جو ہے ایک جمہوری ملک ہے، اور اس میں تبادلہ خیال کی لوگوں کو آزادی ہے۔ لوگ تبادلہ خیال ایک دوسرے سے آپس کے خیالوں کا تبادلہ کرتے ہیں، بولنے میں اپنے خیال کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک جمہوری ملک میں اپنے باتوں کو ہم دوسروں تک رکھ سکتے ہیں، ہمیں جو من میں آیا بول سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے تجربوں کو ایک دوسرے کو بتانا چاہیے اور ایک دوسرے کو اس سے مستفید کرنا چاہیے، یعنی ان لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف، اچھی گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر ہے بلکہ یہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے، ہمارا ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے جس کا صحیح استعمال سیکھنا ضروری ہے۔ اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کی صحبت کے علاوہ تیسری چیز جو اچھی زندگی کی بنیاد ہے، بیس ہے، وہ کام ہے۔ اس سے متعلق ہمارے صدر
मोहतरम जाकिर हुसैन ने अपने एक खुतबे में लिखा है कि काम बेमकसद नहीं होता, काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं, काम खाली दिल लगी नहीं, काम खेल नहीं, काम काम है, बामकसद मेहनत है। काम जो है वो बामकसद मेहनत है। काम क्या है? बामकसद मेहनत है, यानी एक मकसद के तहत मेहनत करना काम है। काम दुश्मन की तरह आप अपना मुहासबा करता है और उसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है जो हमें कहीं और नहीं मिलती, कोई और चीज़ करने में हमें नहीं मिलती। जब हम कोई काम करने में कामयाब हो जाते हैं और उस काम का नतीजा हमें मिल जाता है तो हमें वो खुशी मिलती है जो मुझे कहीं और नहीं मिलती। उसके बाद कह रहे हैं कि काम रियाजत है, काम इबादत है। इबादत जो है, इबादत जो हम अल्लाह ताला की करते हैं तो एक हुकूकुल इबाद है, एक हुकूक अल्लाह है। हुकूक अल्लाह तो नमाज रोज़े ये सब है हुकूक अल्लाह, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो हम काम के ज़रिए अदा कर सकते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, अपने वक्त को उसमें गुजारते हैं ताकि जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचो, तो वो हुकूकुल इबाद है, इबादत में ही वो शामिल हो जाता है। अब वो कहते हैं कि इंसान की शख्सियत उस वक्त तक किसी हसीन सांचे में नहीं ढल सकती जब तक उसका दिल जब तक उसका दिल जो है काम को इस अंदाज से काम करने की लगन पैदा ना कर ले वो अपने दिल में। हकीर से हकीर काम में मानी और लुत्फ पैदा हो सकता है। हकीर से हकीर काम में कह रहे हैं वो कि मानी और लुत्फ पैदा हो सकता है, बशर्ते के काम करने वाला उसका रिश्ता बड़े मकसद के साथ कायम करे। मतलब काम करने का जो है जो काम कर रहा है तो उस काम करने में एक मकसद को वो शामिल करे कि मैं इस काम को किस लिए कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर वो बता रहे हैं कि दो मजदूर एक पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर ने पहले से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने जलकर जवाब दिया देखते नहीं, अपनी किस्मत के लिखे पत्थर फोड़ रहा हूँ। ज़रा और आगे बढ़कर उसने दूसरे मजदूर से भी यही सवाल किया। उसने बहुत फख्र और खुशी के साथ जवाब दिया मैं एक गिरजा की तामीर कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एक गिरजा की तामीर कर रहा हूँ। देखा आपने, पत्थर वही थे लेकिन मजदूर उनसे अपनी किस्मत फोड़ रहा था एक मजदूर, और दूसरा एक इबादतगाह बनाने का ख्वाब देख रहा था और खुशी खुशी वो अपने काम को कर रहा था क्योंकि उसका मकसद बहुत ऊंचा था। हमारे मुल्क में न सिर्फ तुलबा बल्कि सब लोगों को काम करने के सही आदाब सीखने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है। किसी काम को सरसरी अंदाज में करना यानी जैसे तैसे करना, सर से एक नागवार बोझ उतारना है, न उसमें खुशी मिलती है, न उसमें खुशी हमें मिलती है, न उस हसीन तकमील में फ़ख्र महसूस होता है, न उसके ज़रिए अपनी दुनिया को समझना मकसद होता है और न हम अपने हमजिनसों के दुख सुख में शरीक होते हैं। ये सब न तो ज़हनी दयानत का तकाज़ा है न इखलाक का। ज़िंदगी खुदा का एक अनमोल अतिया है और वो तमाम सलाहियतें और हुनरमंदियाँ और जौहर जो उसके साथ कुदरत हमारे कीसे में डालती है। कीसे थैला को बोलते हैं, यानी हमें जब ज़िंदगी देती है तो ज़िंदगी के साथ साथ हमारे अंदर जो अक्ल शऊर काम करने का जज्बा जो डालती है हमारे साथ साथ, वो मुसन्निफ़ कह रहे हैं उनकी कीमत कैसे हम अदा कर सकते हैं। उनकी कीमत सिर्फ काम और काम के सिक्के में अदा किया जा सकता है। वो कह रहे हैं काम और सिर्फ काम के सिक्के में हम अदा कर सकते हैं। जो शख्स इस कीमत को खुशदिली और ईमानदारी के साथ अदा नहीं करता उसकी हैसियत मेरे नज़दीक एक चोर की है। उसकी
शख्स उसकी हैसियत मेरे नज़दीक एक चोर की है। वो खुद का चोर है, समाज का चोर है और खुदा का चोर है। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो अपने काम को सही तरह से नहीं करता, वक्त को ऐसे ही गुजारता है, उसकी जो है उसकी हैसियत मेरे नज़दीक एक चोर की तरह है। लेकिन जीने का सलीका सिर्फ बड़े बड़े उसूलों की पाबंदी पर मुनहसर नहीं करती है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी शामिल हैं। एक मामूली इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसी सतह पर बसर नहीं होता जहाँ हर कदम पर मंसूर की तरह अनल हक कहने की ज़रूरत हो। अनल हक मंसूर एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। उनका पल पल लम्हा लम्हा अल्लाह की इबादत में सर्फ होता था। वो गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार किए हुए थे और सिर्फ अल्लाह एक जज्ब की सी कैफियत उनके ऊपर तारी रहती थी। और वो अनल हक यानी उसको हर जगह सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह दिखाई पड़ता था। हर चीज़ में, हर कुछ में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह दिखाई पड़ता था। उन्हें और कुछ ज़िंदगी का कोई और चीज़ नहीं समझ में आता था। तो हर आदमी तो इतना पहुंचा हुआ बुजुर्ग नहीं बन सकता। हर आदमी के जो है वो ऐसे नहीं कर सकते। ये कुछ लोग होते हैं, अल्लाह के चुनिंदा लोग होते हैं, जो वली होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। लेकिन एक आम इंसान भी जो दुनिया की ज़रूरतों में लगा होता है, हज़ार तरह के काम होते हैं उसमें वो लगा होता है, लेकिन अगर वो अपने काम को सही तरह से करे, सही मकसद के तहत करे, अगर वो काम भी करता है, खेत में भी काम करता है और उसकी नीयत ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, तो वो ये इबादत ही कर रहा है, ये इबादत में शामिल हो जाता है। ये वो कुल इबाद है, उसी को कह रहे हैं। उसी को मुसन्निफ इस 2-3 लाइन में उन्होंने यही समझाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपस में मेल जोल, दोस्ती और मेहरबानी, मामलात में इंसाफ और सच्चाई और भरोसा, मिलजुल कर काम करना, दूसरों के हुकूक की पासदारी यानी दूसरे के हुकूक को समझना, दूसरे के हुकूक को नहीं मारना और उनके राय का एहतराम, खुश मिजाजी और ज़राफ़त और खामखा की दिलशिकनी और बदगोई से परहेज़, ये सब जो है अगर हमारे उसूल में शामिल है तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मेरा ख़्याल है कि हमारी आए दिन की ज़िंदगी में बहुत से नफ्सियाती दुख और महरूमियाँ जो हैं वो इन्हीं सब की वजह से शामिल होती है। दिलशिकनी, एक दूसरे के साथ दिलशिकनी है हमारी, महरूमियाँ हैं, बदगोई से काम लेते हैं, बदगोई से यानी गलत बात कहने से हम परहेज़ नहीं करते, तो ये सब हमारी ज़िंदगी में दुख और महरूमियाँ लाती हैं। ये सब हम अपने दोस्तों, अजीज़ों और हमजिनसों से मेहरबानी, फयाज़ी और हमदर्दी का सलूक नहीं करते। उनके बारे में दूसरे लोगों के सामने गैर जिम्मेदारी के साथ ऐसी बातचीत करते हैं जिससे उनकी नेकनामी पर बुरा असर पड़ता है, या महज तफरीहन और गर्मी महफिल की खातिर ऐसी गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं जिससे उनकी नेकनामी पर बुरा असर पड़ता है, या फिर दूसरों की बुराई को बगैर जांच पड़ताल के आसानी से मान लेते हैं।